Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss the reading first of DSC Introductory Development Economics. Reading name is Introducing Economic Development, A Global Perspective by Todaro, MP and Smith. Let's start. In the introduction part, there is a comparison between two countries, the miseries of rural Africa and unsanitary or overcrowded urban slums of South Asia. In South Asia, particularly coastal China. Both picture convey important parts of great development drama. दोनों पिक्चर्स में रूरल अफ्रीका एंड साउथ एशिया में ग्रेटर डेवलपमेंट ड्रामा को दिखाया गया है. लिविंग कंडीशंस आर इम्प्रूविंग सिग्निफिकेंटली. लिविंग कंडीशंस तो है वो इम्प्रूव हो रही है सिग्निफिकेंटली थ्रू नॉट ऑल parts of globe, if sometimes all too slowly and conveniently. Cumulative effect ये है कि economic development has been giving rise to unprecedented global transformation. जो economic development हो रही है उससे globally transformation हो रहा है in the world. In this book, इस बुक में अलग अलग perspective दिखाया गया है कि how much is yet to be achieved, कितना अचीव करना बाकी है, and will appreciate how we have already come so far in reducing human misery. और हम कहाँ तक human misery, human दुख को कहाँ तक हमने कम कर दिया है और कितना अचीव कर लिया है अब तक. Indeed, that is where many lessons are to be found on how to continue the progress. और कुछ lessons ये हैं जो progress पे. ये introduction part है इस chapter का, इस book का. Our first topic is Introduction to some of the world's biggest question. वर्ल्ड के कुछ biggest question का introduction है. The study of economic development raises some of the world's biggest question. जो economic development की study है उससे बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड की कंडीशन पर क्वेश्चन उठते हैं. जैसे why do living condition, जो लिविंग कंडीशन है, differ so drastically for people across different countries, regions, some so poor and others so rich. जो लिविंग कंडीशन है वो क्यों अलग अलग कंट्री में डिफर करती है. कुछ कंट्री बहुत पुअर है और कुछ बहुत रिच. Why are there such disparity not only in income and wealth, ना कि सिर्फ इनकम और वेल्थ में, but also in health, nutrition, education, freedom of choice, women's autonomy, environmental equality, access to market, security and political voice. ना कि सिर्फ इनकम और वेल्थ में, health, nutrition, education, freedom of choice, women autonomy, environmental equality, access to market, security, political voice, इन सब में disparities, differences देखने को मिलते हैं. Why is output per worker, एक पर्सन कितना आउटपुट कमाता है, many times higher in some countries than others. बहुत सारी कंट्री में हायर होता है और compared to others. Why do workers in some countries have fairly secure formal jobs? क्यों कुछ कंट्रीज में सिक्योर और फॉर्मल जॉब्स हैं और रेगुलर और प्रिडिक्टेबल पे है उनके पास, while in other countries jobs are extremely scarce and most work in informal settings. कुछ कंट्रीज में तो इतनी सिक्योर और फॉर्मल और रेगुलर पे वाली जॉब्स हैं और कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहां पर ना तो कोई फॉर्मल सेटिंग है, सिर्फ इनफॉर्मल सेटिंग है वहां पर, और एक्सट्रीमली स्कार्स, बहुत कम पाई जाती हैं. विथ फ्लक्चुएशन होती रहती है अर्निंग्स में. अर्निंग्स इनसिक्योर है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती. व्हाई आर पॉपुलेशंस ग्रोइंग रैपिडली इन सम कंट्रीज? कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है व्हाइल ऑन द वर्ज ऑफ श्रिंकिंग इन अदर्स, और कुछ कंट्रीज में ये कम होती जा रही है. व्हाई आर पब्लिक सर्विसेज सो इनएफिशिएंट, इनसफिशिएंट एंड करप्ट? जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो इतनी इनएफिशिएंट, इनसफिशिएंट, करप्ट, ना तो एफिशिएंट है ना सफिशिएंट है, और करप्ट तो हद से ज्यादा. और कुछ कंट्रीज में सो इफेक्टिव, बाकी में इफेक्टिव है. व्हाई हैव पीपल फॉर्मली पुअर कंट्रीज मेड सो मच प्रोग्रेस? कुछ कंट्रीज में प्रोग्रेस हो रही है कंपेयर टू लिटल, बाकियों में बहुत कम हो रही है. हाउ हैव चाइल्ड इलनेस एंड डेथ रेट्स फॉलन सो मच इन द वर्ल्ड? जो चाइल्ड इलनेस है और
मरने का मृत्यु दर है वो कम हो रहा है वर्ल्ड में, और बाकी की एवरेज से, कुछ कंट्रीज में एवरेज से भी ज्यादा चाइल्ड इलनेस और हेल्थ डेथ रेट्स हैं। ये क्यों है? हाउ कैन वी मेजर इम्पैक्ट्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज? गवर्नमेंट पॉलिसीज को कैसे इम्पैक्ट करता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम है वो मेक इन इम्प्रूविंग द वेलबिंग ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल। व्हाट लेसन हैव वी लर्न? इनसे हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है? एंड हाउ डिड सच ग्रेट डाइवर्जेंसेस अक्रॉस कंट्रीज आर कम आउट? ये ग्रेट जो डाइवर्जेंसेस है, डिफरेंसेस है अक्रॉस कंट्रीज, कुछ में ज्यादा अमीर लोग हैं, कुछ में गरीब लोग हैं, कुछ में अच्छी जॉब्स है, कुछ में इनफॉर्मल जॉब्स है, इनसिक्योरिटी अर्निंग्स की, कुछ में पब्लिक सर्विसेज इन एफिशिएंट इनसफिशिएंट करप्ट हैं, कुछ में इफेक्टिव हैं। ये क्यों है? ऐसा क्यों है? हाउ डज हिस्ट्री मैटर? कैसे हिस्ट्री मैटर करता है? दीज आर अमंग द फंडामेंटल क्वेश्चन। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। एज नोबेल लॉरिएट रॉबर्ट लुकस said of question about disparities in income growth, वो इनकम ग्रोथ के इन क्वेश्चंस के इन डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम ग्रोथ के क्वेश्चंस के बारे में क्या कहते हैं? once one talks to them about them, it is hard think about anything else. अगर एक कोई भी पर्सन उनके बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में सोचने लग जाए तो ये बहुत मुश्किल है कि वो किसी और चीज के बारे में सोच पाए। ये कहते हैं नोबेल लॉरिएट रॉबर्ट लुकस। दिस टेक्स्ट एग्जामिन व्हाट लाइज बिहाइंड द हेडलाइन नंबर्स। ये टेक्स्ट बताता है जो हेडलाइन नंबर्स के पीछे जो डेवलपमेंट पैटर्न है उसको दर्शाता है। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है। ये है एक प्रोसेस, रातों रात होने वाली कोई चीज नहीं है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये, ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन लाइफ। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकती है? एजुकेशन, हेल्थ, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करवा के उनकी ह्यूमन लाइफ की इन बेसिक नेसेसिटीज को इंप्रूव करना, और कैपेबिलिटीज बाय रेजिंग पीपल्स लेवल ऑफ लिविंग, लोगों की लेवल ऑफ लिविंग बढ़ाना जिससे उनकी कैपेबिलिटी बढ़े, उनकी सेल्फ एस्टीम, फ्रीडम, इन सबको बढ़ाना। ये इसकी इन सब थिंग्स की प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंट। इतनी बड़ी टर्म है ये डेवलपमेंट। इसके अंदर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कैपेबिलिटीज, लेवल ऑफ लिविंग, सेल्फ एस्टीम, फ्रीडम, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म्स हैं। सो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल दिस टर्म्स। सो डेवलपमेंट पैटर्न्स प्रेजेंटिंग नेसेसरी एनालिटिकल टूल्स, most recent and reliable data on challenges ranging from extreme poverty to international finance। यहां से यहां तक सब कुछ कवर करता है डेवलपमेंट का ये कंसेप्ट। दिस टेक्स्ट एग्जामिन्स की challenges faced by the spectrum of developing countries। जो क्या challenges फेस किए जा रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के बाय least developed or countries to upper middle income nations striving to reach fully developed status. But to begin, while significant process in public health has occurred in almost all countries, even today, आज के टाइम पे भी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ 100 of millions का लिविंग स्टैंडर्ड है ऑफ वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल हैव बेनिफिट लिटिल। जो 100 of million पीपल हैं जो बहुत गरीब हैं वर्ल्ड में, उनमें भी थोड़ा बहुत उनको भी बेनिफिट, लिटिल बिट बेनिफिट उनको भी महसूस हुआ है। ये कैसे हुआ है? फ्रॉम राइजिंग ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। ग्लोबली जो प्रोस्पेरिटी हो रही है उससे पुअरेस्ट पीपल को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचा है, थोड़ा बहुत ही सही बट पहुंचा है। हाउ लिविंग लेवल्स डिफर अराउंड द वर्ल्ड। अब हम तब से बात कर रहे हैं लिविंग लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। क्या होता है ये लिविंग लेवल्स? कैसे कैसे लिविंग लेवल्स डिफर करता है वर्ल्ड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक? एवरेज लिविंग कंडीशन डिफर ड्रास्टिकली। कोई भी एवरेज लिविंग कंडीशन है वो ड्रास्टिकली डिफर करती हैं एक दूसरे से, डिपेंडिंग लार्जली ऑन वेयर अ पर्सन बोर्न, वेयर, कहाँ उसने जन्म लिया है। वे एग्जामिन द एविडेंस इन डिटेल थ्रू आउट दिस टेक्स्ट। आगे हम देखेंगे तो कैसे ये फैक्टर
अफेक्ट करता है लिविंग कंडीशंस को। ऑफन कंट्रीज एज अ होल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। कंट्रीज एज अ होल 4 ग्रुप्स में डिवाइड की गई है बेस्ड ऑन देयर एवरेज लेवल ऑफ इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ वेलबींग के बेसिस पे 4 ग्रुप्स में कंट्रीज को डिवाइड कर दिया गया है। और वो 4 ग्रुप कौन से हैं आगे पढ़ेंगे हम। But first, to get a sense of scope and individual meaning of these differences, consider a brief vignette of 4 styled strata of living standard. अब ये क्या है style strata of living standard around the world? Living standard strata क्या होता है? Stylized sets of material living condition. काम एक जोड़ी कपड़े में, एक जोड़ी जूतों में भी चल सकता है, बट हमें तो लुई विटॉन, गुची इनके पहनने हैं। ये क्या है? ये सब मटेरियल लिविंग कंडीशंस है। स्टाइल सेट ऑफ मटेरियलिस्ट लिविंग कंडीशन, द 4 स्टार्टा स्कीम, ये है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ स्टार्टा। ये किसके थ्रू क्रिएट किया गया है? वो है हेंस रोसलिंग। एट द बॉटम मोर देन 1 मिलियन पीपल, सबसे पहले आते हैं बॉटम स्टार्टा। नंबर 1, sorry for the writing, more than 1 million people live in extreme income poverty. 1 बिलियन से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हैं। मल्टी डायमेंशनल डेप्रीवेशन, बहुत सारी उनको डेप्रीवेशंस देखने को मिलते हैं। डेप्रीवेशंस मीन फायदे का अपोजिट, यही मान लो डेप्रीवेशन, जिसको नहीं समझ आ रहा है। इन एरिया सच एज डेप्रीवेशन कौन से एरिया में? न्यूट्रिशन, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन और बोथ। न्यूट्रिशन, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन बेसिक चीज है यार ये तो, इनमें भी इनको डेप्रीवेशन नजर आता है। ये लोग आएंगे बॉटम में। 1 बिलियन पीपल एक्सट्रीम इनकम पॉवर्टी से जी रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने 2017 में 768.5 मिलियन को नियरली 3/4 बिलियन पीपल सब्सिस्ट करते थे इस स्टार्टा में बिलो द एक्सट्रीम पॉवर्टी इनकम ऑफ $1.90 पर डे। इनकी इनकम होती थी 1.90 पर डे एडजस्टेड फॉर परचेजिंग पावर। ये आते थे बॉटम लाइन में, आते थे क्या है, अभी भी बॉटम लाइन में पीपल है। ये 2017 का डाटा है। यू कैन ऑल्सो फाइंड द डाटा फ्रॉम 2023 sorry. A typical person living in such extreme income poverty subsists on about $1.40 per day. एक टिपिकल पर्सन जो एक्सट्रीम इनकम पॉवर्टी में सबसिस्ट अपना जीवन यापन कर रहा है वो होता है $1.40 पर डे। इस मनी के साथ वो अपना डे स्पेंड करता है। टेकिंग अकाउंट ऑन वेदर अ फैमिली हैज साइमल्टेनियस डेप्रीवेशन, बहुत सारे डेप्रीवेशन होते हैं उसको, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, बेसिक एजुकेशन में, टाइप ऑफ कुकिंग में, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग मटेरियल, इन सब में उसको डेप्रीवेशन देखने को मिलता है। और 2018 में यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट करती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके अंदर नियरली 1.3 बिलियन पीपल लिव विद एक्यूट डेप्रीवेशन। 2018 के यूनाइटेड नेशन के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 1.3 बिलियन पीपल इस एक्यूट डेप्रीवेशन से ग्रस्त थे। वन ऑफ द पुअरेस्ट कम्युनिटीज में लिव इन अ रिमोट रूरल एरिया इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। एग्जाम्पल दे रखा है एक ईस्टर्न अफ्रीका का, where many cluster of small houses contains group of extended families. स्मॉल हाउसेस, छोटे हाउसेस होते थे और एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी, एक से मतलब 4 लोग से ज्यादा की फैमिली। मेजोरिटी ऑफ फूड इज ग्रोन बाय पीपल हु कंज्यूम इट। जो फूड था वो मेजोरिटी ऑफ उन पीपल के द्वारा ग्रो किया जाता था जो उसे कंज्यूम करते थे। शेल्टर और फर्निशिंग के नाम पे उनके पास देयर इज नियरली अ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, सिर्फ शेल्टर और फर्निशिंग के नाम पे। ये सब्सिस्टेंस इकोनॉमी क्या चीज है? एक इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन इज मेनली फॉर पर्सनल कंजप्शन। प्रोड्यूस किया जाता है, पर्सनली यूज कर लिया जाता है, कोई सरप्लस नहीं, कोई मार्केट में बिकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ प्रोड्यूस किया और खुद ही कंज्यूम किया। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यील्ड्स लिटिल मोर देन बेसिक नेसेसिटीज। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा बहुत बेसिक नेसेसिटी, फूड, रोटी, कपड़ा, मकान से थोड़ा सा ज्यादा, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग से थोड़ा सा ज्यादा।
ऐसा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। ये होती है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, मतलब सिर्फ जीवन यापन करना, कैसे जैसे तैसे बस जी रहे हैं। देर आर फ्यू पैसेबल रोड्स, थोड़ी बहुत रोड होती थी पासेबल जहां से जा सके। रेनी सीजन में ये भी छूट छूट जाती थी। द यंगर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल इरेगुलरली, जो यंगर चिल्ड्रन था वो इरेगुलरली कभी स्कूल जाता था कभी नहीं जाता था। व्हेन दे डू गेट टू स्कूल, कभी जाते थे तो टीचर एब्सेंट हो जाता था क्लास में से, टीचर ही नहीं होता था। सम चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल एज आर स्टिल नॉट इवन इनरोल्ड, कुछ प्राइमरी स्कूल एज के बच्चे तो अभी तक इन्वॉल्व भी नहीं हुए थे। प्राइमरी स्कूल में भी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस, बहुत मुश्किल से मिल पाता था इन लोगों को। और चिल्ड्रन हैव नेवर सी हाई स्कूल, तो कभी इन्होंने देखा ही नहीं था। लेट अलोन थॉट ऑफ अटेंडिंग वन, अटेंड करने की तो बात ही छोड़ दो। देयर नो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं है। इलेक्ट्रिक वायर्स और इम्प्रूव वाटर स्पॉइल, ये भी नहीं है। वाटर इज कलेक्टेड रीयूज कमर्शियल बकेट्स, रीयूज किया जाता था कमर्शियल बकेट से फ्रॉम अ सोर्स सच एज स्प्रिंग और स्ट्रीम, स्प्रिंग और स्ट्रीम से जो वाटर आता था वहीं से रीयूज कर लिया जाता था। देयर वॉक टू इट इन पेटर्ड फ्लिप फ्लॉप सैंडल, या तो फ्लिप फ्लॉप सैंडल्स में या फिर बेयर फिट नंगे पैर जाकर वो किलोमीटर जाकर लाइन में लगकर अपनी वेट करते थे अपनी टर्न आने का, फिर पानी भर के लेके जाते थे। चिल्ड्रन माल न्यूट्रिश थे, सफरिंग और फ्रॉम कंडीशन इंक्लूडिंग कवाशिको, प्रोटीन डेफिशिएंसी जैसे कंडीशन से ये सफर कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एक्यूट डिप्रीवेशन से गुजर रहे हैं ये लोग। उसका एग्जांपल है ईस्ट साउथ अफ्रीका का। फूड ओपन फायर में कुक किया जाता था। स्मोक एस्केपिंग फ्रॉम अ होल, एक होल से स्मोक को बाहर छोड़ दिया जाता था, इससे घर के अंदर नहीं आ रहे। लाइकली कोजिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती रहती थी इसके कारण, स्मोक के कारण। फूड था वो टेंस टू बी सेम, हमेशा एवरी मील में सेम खाना मिलता था विद लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी होती थी जिनमें, और अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती थी। फ्लोर होता था वो रफ होता था, मैट्स ओवर मड। पैरासाइट जैसी बीमारी थी जो एंटर करती थी हाउस में थ्रू द फ्लोर। जब बारिश आती थी तो रूफ लीक करती थी। इट इज स्टार्क एंड डिफिकल्ट एग्जिस्टेंट थी इनकी। वेस्टर्न इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कल्चर एंड लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट, डिफरेंट। जो वेस्टर्न अफ्रीका, ये हमने अभी बात की ईस्टर्न अफ्रीका की, जो वेस्टर्न अफ्रीका की ज्योग्राफी, कल्चर एंड लैंग्वेज थी ये बिल्कुल डिफरेंट थी। बट मैनी ऑफ दीज कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी एंड स्ट्रिंकिंग सिमिलर, मैनी कंडीशन जो ये पॉवर्टी की थी, गरीबी की, लगभग सिमिलर थी। सच डायर पॉवर्टी कैन ऑल्सो स्टिल बी फाउंड इन एरियाज ऑफ साउथ एशिया एंड एल्सवेयर। मोर देन 3/4 ऑफ एक्सट्रीम पुअर लिव इन रूरल एरिया, 3/4 ऑफ पीपल से वो एक्सट्रीमली पुअर जिंदगी जीते थे रूरल एरियाज में, सिर्फ गांव के एरिया में। ये बात हो गई हमारी सबसे पहले बॉटम स्ट्राटा की। अब बात आती है सेकंड लोवेस्ट स्ट्राटा। सेकंड लोवेस्ट की बात आ गई। अब ये ऑफिशियली इनको एक्सट्रीमली पुअर नहीं कह सकते, नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड एक्सट्रीमली पुअर। तो फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ एन एवरेज पर्सन इन रिच कंट्री, दे वुड बी व्यूड एज वेरी पुअर। इन्हें ऑफिशियली एक्सट्रीमली पुअर नहीं कह सकते थे। एक एवरेज पर्सन जो रिच कंट्री में रहता है उनके लिए ये बहुत पुअर होंगे। सेकंड लोएस्ट स्ट्राटा की बात हो रही है यहाँ पे। टिपिकल फैमिली जहां पर 3.80 पर डे इन कमाई करते थे, ये करते थे, सॉरी नहीं करते हैं, मतलब अभी भी ये एग्जिस्ट करता है ये फोर जो इनमें डिवाइड कर रखा है। क्लोज टू 3 बिलियन पीपल, 3 बिलियन पीपल एग्जिस्ट करते हैं इसमें। ऑलमोस्ट लाइक टू लिव इन अर्बन एरिया, एक अर्बन एरिया में रहते हैं। वेयर लोअर इनकम पेरी अर्बन एरिया एज इन रूरल एरिया, कुछ इनमें रूरल एरिया में रहते हैं। देयर एम्प्लॉयमेंट इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है इनके पास। काम का इनफॉर्मल जरिया है जहाँ पे कंपनी रजिस्टर नहीं करती है इन्हें विदाउट वर्कर प्रोटेक्शन, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती वर्कर को। स्मॉल फैमिली होती है इनकी। दे गेट अराउंड वेल यूज्ड बट फंक्शनिंग बाइसाइकल्स, काम करने लायक साइकिल होती है इनके पास। मेजोरिटी ऑफ इनमें से नो लॉन्गर कुक ओवर ओपन फायर, ओपन फायर जैसे चूल्हे चौके पर काम नहीं करते थे। इनके पास केरोसिन या फिर सम अदर इम्प्रूव्ड एनर्जी सोर्स होता है खाना पकाने के लिए। पानी मिल जाता है इनको, लेकिन इसके लिए भी उनको आउटडोर कहीं ना कहीं थोड़ा वॉक करके जाना होता है अपने घर से।
मान लीजिए 50 मीटर दूर। उसके बाद फैमिली यूजुअली हैज इम्प्रूव्ड फ्लोर होता है इनके पास। पानी आता है बट वो फिर भी सेफ नहीं होता है, स्टिल अनसेफ, उसे बॉयल या फिर कुछ क्लोरीन ऐड करके उसे सेफ बनाना पड़ता है। ऑफन इम्प्रूव्ड वॉल्स और रूफ इम्प्रूव्ड होती हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव फ्लोर होता है बॉटम स्ट्राटा से कंपेयर करें तो। हाउस इज स्टिल समवेट सब्जेक्ट टू एलिमेंट्स, बट बहुत ज्यादा इम्प्रूव भी नहीं होता। कभी कभी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है, कॉन्स्टेंट कोई ना कोई आवाज आती है उसके कारण। मोर कंपोनेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एक या एक से ज्यादा पॉवर्टी के कंपोनेंट्स इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर एटलीस्ट 80% ऑफ नंबर ऑफ डेप्रेशन आर नॉट इनफ देम टू ऑफिशियली क्लासिफाइड ह्यूमन। मल्टी डायमेंशनली पुअर कंसिडर्ड किया गया है इन्हें बाय यूनाइटेड नेशंस। एक बॉक्स आएगा आगे 1.1 जिसमें हम वॉइसेस ऑफ पुअर देखेंगे।